آج محمود خان آپ کو اور پختونخوا کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پروجیکٹ بنایا یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے. یعنی یہ جو اس کی جو کوالٹی اور جو اس کی جو کہتے ہیں نا کہ اس کو کیا کہتے ہیں تھرڈ جنریشن تو یعنی کہ وہ میٹروز کے اندر یہ ہائی لیول کا پروجیکٹ ہے. اور اس لیے اس کے اثرات پشاور میں اس لیے پڑیں گے کیونکہ پشاور میں ایک ہی آپ کی مین آرٹری ہے جو جاتی ہے جی ٹی روڈ سے لے کے حیات آباد تک, اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جب پریشر پڑتا ہے تو بالکل بند ہو جاتی ہے, چوک ہو جاتی ہے, اور لوگ گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اس ٹریفک میں, جس کی وجہ سے وہ پولوشن بھی بڑھتی ہے, پٹرول بھی ضائع ہوتا ہے اور لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بیسک آرٹری کو ٹھیک کر دیا, اس سے بہت بڑا آپ کا ٹریفک کا مسئلہ تورخم تک جاتی ہے. آپ کے سارے جو ٹریفک کے اصل مسئلے تھے وہ حل ہو جاتے ہیں. اور اس سے جو آپ نے اس کی امپورٹنٹ چیز جو لوگوں کو سمجھنا ہے کہ 27 کلومیٹر تو اس کا صرف یہ مین آرٹری ہے, لیکن اس کے ساتھ تقریباً 60 کلومیٹر فیڈر روٹس ہیں. تو یعنی کہ اس کا مطلب سارا جو پشاور کا ایریا وہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو یہ کہہ دیں کہ پشاور کے لیے یہ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم آ گیا ہے جو کہ پورا پشاور کو اور علاقوں کو کور کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ میں یہ پہلا فیز ہوتا ہے جب کہ آپ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم پرووائڈ کر دیں. میں آج یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر ریزرویشنز تھیں, اور میں آج پرویز خٹک کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا اس کی اہمیت. تو میں آج پرویز خٹک سب کی طرف سے اپنی طرف سے نہیں, میں تو پرویز خٹک سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلط ہیں, پرویز خٹک آپ ٹھیک نکلیں. اور جو یہ آپ نے ریٹ رکھی ہے محمود خان, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک ریٹ رکھی ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جب بھی ہماری جو گورنمنٹ اور باقی گورنمنٹس میں کیا فرق ہونا چاہیے, جو بھی ہم پروگرام کریں نا اس میں ہمارا جو سب سے بڑی اہمیت ہونی چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے. اور یہ جو آپ نے 10 روپے ٹکٹ رکھا ہے منیمم, اور 10 روپے سے جو اوپر لے کے جا رہے ہیں 50 روپے تک, یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے. اور اس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ایسے ہوگی کہ وہ ٹرانسپورٹ جب ہوتی ہے تو اگر اس کو ڈیلی ویجر جو ہے وہ اپنی پھر اگر یہاں نہیں نوکری مل رہی تو وہ کہیں اور جا کے لے سکتا ہے. یہ بہت ایک عام آدمی کی زندگی میں بہت بڑا ایک انقلاب آتا ہے. تو آپ نے جو یہ اس کی ٹکٹ بھی رکھا ہے, مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے جو آپ کا مزدور ہے, جو محنت کش ہے, اس کے لیے ایک انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی ایک نعمت بنے گی. جو اسٹوڈنٹس ہیں, دوسری چیز آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹکٹس رکھے ہیں کیونکہ ٹریول کرنے میں بڑا آسان ہو جائے گا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, کالجز جانا, یونیورسٹیز, اور پھر ہسپتالوں کو کنیکٹ کر دیا آپ نے تو ہسپتال جانے کے لیے بھی لوگوں کو مشکل میں آسانی ہو جائے گی. یہ ایک میں جتنی بھی آپ کو مبارک دوں کم ہے کیونکہ ان ٹائم اس طرح کا جب آپ ایک پورا ٹرانزٹ ایک پورے شہر کا, یہ صرف ایک سڑک نہیں ہے 27 کلومیٹر کے, پورے شہر کو کنیکٹ کر رہی ہے. اس سے انشاءاللہ پشاور میں آپ کی پر کیپٹا انکم بھی بڑھ جائے گی, اس سے خوشحالی بھی بڑھ جائے گی. کیونکہ جس طرح میں نے کہا جب ایک اچھا آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کا سسٹم آ جاتا ہے تو اسے چینج آتی ہے. آخر میں جو مجھے چیز پسند آئی کہ یہ جو بسز چل رہی ہیں یہ ہائیبرڈ ہیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں الیکٹرک بسز اور ڈیزل کے ساتھ مکس ڈیزل ہائیبرڈ ہے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ مکس کیا ہے کم از کم اس سے پولوشن لیولز پشاور میں کم ہوں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پولوشن بہت اوپر چلی گئی تھی پشاور میں, جس طرح لاہور میں بہت اوپر چلی گئی ہے. تو یہ جو آپ نے انٹروڈیوس کیے ہیں یہ ہائیبرڈ بسز, اس سے انشاءاللہ پولوشن میں کمی آئے گی. شکریہ.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए परवेज़ खट्टक को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि परवेज़ खट्टक ने कहा था जब ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तब इस मंसूबे की अहमियत का एहसास होगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी की ज़िंदगी इससे बेहतर होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब के दौरान ये कहा कि टिकट हर कोई अफोर्ड कर सकता है स्टूडेंट्स के लिए, और मरीज़ों को हॉस्पिटल्स जाने में भी आसानी होगी, और सड़क के ज़रिए पूरे शहर को कनेक्ट कर दिया गया है और इससे पेशावर में खुशहाली भी बढ़ जाएगी। जबकि बसों के हवाले से ये कहा कि बसें हाइब्रिड हैं और उससे पोल्यूशन लेवल भी कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने BRT मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है और उन्होंने खिताब करते हुए परवेज़ खट्टक को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये मंसूबा मुकम्मल किया गया है और इसका टिकट हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इससे आम आदमी की ज़िंदगी आसान होगी, जबकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साथ मरीज़ों को हॉस्पिटल्स जाने में भी आसानी होगी और सड़क पूरे शहर को कनेक्ट कर रही है और इससे पेशावर में खुशहाली में भी इजाफा होगा। जबकि बसें हाइब्रिड हैं जो कि पोल्यूशन भी उससे पेशावर में कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेशावर BRT मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है और BRT कॉरिडोर की कुल लंबाई 27 किलोमीटर है। 31 स्टेशन इस पर बनाए गए हैं और 220 एयर कंडीशन बसें हैं जो सुबह 6 से रात 10 बजे तक चलाई जाएंगी और रोज़ाना 1,40,000 से ज़ायद मुसाफिर BRT में सफ़र कर सकेंगे और सफ़र का किराया स्टेशन के हिसाब से 15 से 50 रुपये तक रखा गया है। मुसाफिरों के लिए बसों और स्टेशन में मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी दी गई है। मरकज़ी रूट को छोटे रूट्स के ज़रिए शहर के 7 इलाकों से जोड़ा गया है। छोटे रूट्स की लंबाई 62 किलोमीटर, उन पर 46 स्टॉप्स बनाए गए हैं। BRT मंसूबे के तहत पेशावर में आवाम के लिए लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान के मेट्रो बस मंसूबों की तर्ज पर आरामदेह सफरी सहूलत फराहम की गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ एहतशाम बशीर से। जी एहतशाम। जी बिल्कुल, जैसे कि इंतजार किया जा रहा था BRT बस के इफ्तिताह होने का, तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसका इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, स्पीकर असम्बली और वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा जो है इस तकरीब में शरीक थे और ये सर्विस जो है अब आवाम के लिए खोल दी गई है। ये कंफ्यूज किया जा रहा था कि ये इफ्तिताह के बावजूद आवाम के लिए सर्विस को नहीं खोला जाएगा, लेकिन आज जो सूबाई इतलात हैं, मामले खुसूसी इतलात है कमरान बंदिश, उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के इफ्तिताह होने के बाद ये जो है आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। तो ये बड़ा इंतजार किया जा रहा था BRT सर्विस का, कि जो जदीद सहूलियात की तर्ज पर ये BRT सर्विस फराहम की गई है हुकूमत की जानिब से। गुज़िश्ता दौरे PTI के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इस बस सर्विस का इफ्तिताह किया गया था, मंसूबे का इफ्तिताह किया गया था और 3 साल के अरसे में इस बस का जो मंसूबा है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जदीद तर्ज का ये मंसूबा बताया जा रहा है। इसमें एयर कंडीशन बसेस फराहम की गई हैं, 220 बसेस बताई जा रही हैं जो इस मंसूबे में शामिल है। इसके कनेक्टेड रूट्स जो गुजर रहे हैं, चमकनी, हयाताबाद, जो GT रोड है, इसके अलावा जो सदर का एरिया है, इसके साथ जो कनेक्टेड रूट है, यहाँ पर भी आवाम को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। जी एहतशाम, ये भी बताइएगा कि इफ्तिताह तो कर दिया गया है, अब शहरी सफ़र कब से कर सकेंगे? जी बिल्कुल, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मामले खुसूसी कमरान बंदिश ने वफाकी वजीर जो आए थे उनके साथ, उन्होंने ये बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म के इफ्तिताह होने के बाद बस सर्विस जो है वो आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी, आम लोग जो है इसमें सफ़र कर सकेंगे। तो लोग इसी इंतज़ार में थे कि इस बस का इफ्तिताह हो सके और 14 अगस्त की मौके पर जो है ये इफ्तिताह किया गया है और कल छुट्टी भी है और लोग यही मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि इस बस में सफ़र किया जा सके। चमकनी से हैदराबाद कारखानों मार्केट तक ये बस सर्विस जो है बनाई गई है। 227 किलोमीटर ये जो सड़क है ये बताई जा रही है और 220 एयर कंडीशन बसेस इसमें शामिल हैं। जी एहतशाम, ये भी बताइएगा कि 27 किलोमीटर तवील ट्रैक है, किन किन इलाकों के लोग हैं जो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे? देखिए, ये सिटी का जो एरिया है यहाँ से ये BRT सर्विस शुरू की गई है। यहाँ पर मेन डिपो बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो GT रोड का एरिया है, इसमें गुलबहार आता है, इसमें जनरल बस स्टैंड आता है। इसके अलावा जो फिरदौस सिनेमा का रोड है, यहाँ पर बलेसार का रोड है, शुबा बाजार है, खैबर बाजार है, कैंट का पूरा एरिया इसमें शामिल है, यूनिवर्सिटी रोड है और हैदराबाद और कारखानों मार्केट को इसको लिंक किया गया है। तो यही रोड जो है ये इसमें किसके लिए बनाए गए हैं और इसके अलावा भी मनसूबाबंदी की जा रही है। जो
इर्द गिर्द के जो इलाके हैं जैसा कि कसदा रोड है, कोहाट रोड है, इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं वहाँ जो रिंग रोड है, यहाँ से आने वाले मुसाफिरों के लिए भी सहूलियात फराहम की जा रही है। यहाँ पर जो है मुतबदल बसें यहाँ से शुरू की जाएंगी और इंटर सिटी जो इलाके यहाँ पर जो आम पब्लिक सर्विस चल रही बसें चल रही थी इसको भी ख़त्म की जा रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि इसको मरहलावार इन बसों को ख़त्म किया जाएगा ताकि एकदम से जो है वो लोगों को मुश्किलात ना हो और लोग जो है सफरी सहूलियात से महरूम ना सकें। तो इसीलिए मरहलावार जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ख़त्म किया जाएगा और कनेक्टेड रूट्स फराहम किए जाएंगे जो तसदा मर्दान और दीगर इलाकों से जो सरकारी मुलाजिम आते हैं या पेशावर में काम करने के लिए लोग आते हैं तो उनको भी इस सफरी सहूलियात से सहूलत मुयसर हो सके। तो इसीलिए जो है कनेक्टेड रूट्स भी फराहम किए जा रहे हैं। जी एहतशाम, इस मंसूबे में सहूलियात क्या क्या रखी गई हैं, इस हवाले से भी बताइए। देखिए खुसूसी जो हुकूमत का कहना है कि जदीद सहूलियात यहाँ पर फराहम की गई हैं, जदीद तर्ज का ये मनसूबा है। तो इसमें जो खुसूसी अफराद उनके व्हील चेयर्स के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो साइकिल ट्रैक है वो बनाया गया है, उसके लिए खुसूसी सहूलियात दी जा रही हैं। इसके अलावा एयर कंडीशन की बसेस फराहम की गई हैं, स्पेशल कार्ड फराहम किए गए हैं जो मकामी लोग हैं वो कार्ड सिस्टम इसको यूज़ कर सकें। अगर कोई बाहर से लोग आते हैं या कोई मेहमान साथ आता है तो उनके लिए टिकट सिस्टम भी फराहम किया गया है। हुकूमत की जानिब से तकरीबन 1 लाख कार्ड मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया गया था, लेकिन चूंकि लोग जो है वो कार्ड हासिल करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं, इसलिए हुकूमत ने मजीद 1 लाख कार्ड जो है वो मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है और कार्ड वसूल करने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो इसी जदीद बस सर्विस के लिए अवाम इसी बेचैन थे और आज वज़ीर-ए-आज़म ने इस मंसूबे का इफ्तिताह कर लिया है। जी एहतशाम, ये भी बताइएगा कि इस मंसूबे की तकमील कई बार ताख़ीर का शिकार भी रही। मंसूबे की तकमील के दौरान किन किन चैलेंजेस का सामना रहा? देखिए बड़ा मसला जो है जो BRT सर्विस फराहम की जा रही थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि एक जो अंदरूनी शहर के इलाके हैं, शुबा बाजार हो गया, खैबर बाजार हो गया, इसके अलावा सदर का जो एरिया है सुनहरी मस्जिद रोड का, तो ये काफ़ी कंजेस्टेड एरियाज है, यहाँ पर इसकी तामीर मुश्किल होगी। तो उसी दौरान इस जो इलाके जो यहाँ के थे इस हवाले से तामीर में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरा इसका यहाँ पर तामीर करने के बाद भी मुख्तलिफ औकात में यहाँ के इसके नक्शे जो हैं वो चेंज किए गए हैं और इसी बुनियाद पर जो है वो जो मंसूबा था उसमें ताख़ीर भी हुई और काफ़ी चेंजेस की गई हैं। इसी बुनियाद पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो उसमें पैसे फंड्स फराहम किए गए थे, उसी बुनियाद पर इसकी NOC भी ली गई थी। तो उस मंसूबे के को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी चेंजेस की गई है, इस वजह से इस मंसूबे की तकमील में मुश्किलात का सामना रहा। अभी भी जो है वो जो शॉपिंग डिपोज हैं वो बनाए जा रहे हैं, शॉपिंग जो प्लाजे हैं वो उसकी भी तकमील बाकी रहती है। हुकूमत का कहना है कि इसी साल वो शॉपिंग मॉल जो है वो भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जी एहतशाम, ये भी बताइएगा कि कार्ड्स कितने तकसीम किए गए हैं और उन कार्ड्स से होगा क्या? देखिए जो किराए का सिस्टम था, फेयर सिस्टम था, उसके लिए इन्होंने कार्ड सिस्टम ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए जो 1 लाख कार्ड हैं वो फराहम किए कर दिए गए हैं, मजीद 1 लाख कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। इसका जो स्टेशन है वहाँ पर ये कार्ड हासिल करने की सहूलत फराहम की गई है। आम आदमी भी जो है अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर देकर और बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए अपना कार्ड वसूल कर सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरे शहर से आने वाला शख्स है या मुसाफिर है तो यहाँ पर जिस स्टेशन पर भी वो जाएं तो वहाँ पर टिकट सिस्टम भी राइज किया गया है, तो टिकट सिस्टम के जरिए भी वो सफ़र कर सकेगा। जी एहतशाम, पेशावर की आवाम का क्या कहना है इस मंसूबे पर? जी बिल्कुल, आवाम काफ़ी खुश नज़र आ रही है और इसी काफ़ी अरसे से ये इस इंतज़ार में थे कि जो बस सर्विस है ये फराहम की जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव था पेशावर के जो मुख्तलिफ रूट्स हैं। तो इसीलिए हुकूमत ने ये मनसूबा शुरू किया था गुज़श्ता दौरे हुकूमत ने कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो उसको हल किया जा सके। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। यहाँ पर जो रक्शे हैं, सुजुकी है और जो दीगर गाड़ियाँ हैं, मज़दा वगैरह बसेस जो हैं, इसका दबाव काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो उस वक्त भी हुकूमत जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत ने PTI पर जो उस वक्त पिंडी और लाहौर की जो मेट्रो बस थी उस पर तनकीद गई थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने पेशावर को एक मेगा प्रोजेक्ट दिया है ताकि यहाँ के लोगों को जो ट्रैफिक का दबाव है, जो मसाइल है, उससे छुटकारा मिल सके। जी एहतशाम, स्टेशंस पे बनाए गए हैं, 31 के करीब स्टेशंस हैं जो कायम किए गए हैं। इलाके बताइएगा, किन किन इलाकों में इन स्टेशंस को बनाया गया है?
जो बस सर्विस है ये शुरू होती है। इसके अलावा आगे जो सरदार गढ़ी का एरिया आता है, फिर इसके बाद हाजी कैंप स्टेशन आता है, इसके गुलबहार के स्टेशन आता है। इसके अलावा जो नजरी है, सदर के स्टेशन है, शुबा बाजार का स्टेशन है, यूनिवर्सिटी रोड पर जो है वो 6 से 7 स्टेशन बनाए गए। इसी तरह हैदराबाद में बनाया गया, और जो हैदराबाद से नजदीक जो एरिया है कारखानों, वहाँ जहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए, इस एरिया को भी कनेक्ट किया गया है इसी BRT की वजह से। तो ये भी एक्स्ट्रा जो मंसूबा जो रूट था वो भी इस BRT में शामिल किया गया है। जी जी एहतशाम, ये भी बताइएगा कि पेशावर में चूँकि आपने भी कहा कि रश बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो कितना मुआवन साबित होगा ये मंसूबा रश को कम करने में? लेकिन जो पेशावर से जो पंजाब के एरिया से या पिंडी के एरिया से जो लोग आते हैं वो रिंग रोड पर उतरते हैं। तो इसी तरह जो रिंग रोड का एरिया है ये फिर GT रोड से कनेक्टेड होकर जो इंटर सिटी एरिया यहाँ से ये गुजरते हैं। तो हुकूमत की कोशिश यही है कि बाहर से आने वाले लोग जो है वो रिंग रोड का इस्तेमाल करें, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ज़रूरी काम की वजह से, शॉपिंग की वजह से या सरकारी कामों की वजह से GT रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए GT रोड का जो मेन पेशावर का जो मेन GT रोड है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश बढ़ जाता था। तो इसी रश को कम करने के लिए हुकूमत ने जो वो BRT सर्विस का मनसूबा शुरू किया है, और जो सरकारी मुलाजिम है या जो कैंट एरिया है और ये यूनिवर्सिटी एरिया या हैदराबाद के एरिया, वहाँ पर जाने वालों के लिए काफ़ी बड़ी सहूलत होगी। चूँकि पेशावर में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, एयर कंडीशन बसें हैं, तो इस हवाले से भी जो मकामी लोग हैं उनको काफ़ी सहूलियात मुयसर होंगी। जी एहतशाम, वज़ीर आज़म की मसरूफियात क्या हैं? क्या वज़ीर आज़म को BRT पर सफ़र कराया जाएगा आज? देखिए, मनसूबाबंदी तो की गई है कि वज़ीर आज़म जो है उन्होंने चमकनी के करीब जो स्टेशन है वहाँ पर इनका इफ्तिताह किया है, और अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला और सूबाई वफाकी वज़रा भी उनके हमरा है। मनसूबाबंदी की गई है, लेकिन अभी सिक्योरिटी इसकी सूरत हाल को देखते हुए मुमकिन है कि वज़ीर आज़म को जो है वो सफरी सहूलत फराम की जाए। जी एहतशाम, जैसे कि आपने भी कहा कि मंसूबा कई बार ताख़ीर का शिकार भी हुआ, तो लागत कहाँ तक जा पहुँची, इस हवाले से भी बताइए। देखें, ये तकरीबन 47 अरब रुपए के मंसूबे से ये शुरू किया गया था, लेकिन ये जो चेंजेस यहाँ पर की गई ये बढ़ता बढ़ता अभी तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 60 अरब के करीब ये मंसूबा पहुँच चुका है। लेकिन जो इजाफी लागत है सूबाई हुकूमत के कहने इस पर नहीं आई। जो नक्शे में चेंजेस की गई थी, जो सूरत हाल जो नक्शे में चेंजेस की गई थी, इजाफी रूट उसमें शामिल किए थे, उस वजह से इसकी जो है लागत है वो बड़ी है। लेकिन सूबाई हुकूमत का कहना है कि इसमें कोई मजीद इजाफा नहीं हुआ। जी एहतशाम, जो मरकजी रूट है उससे कुछ इलाकों को भी जोड़ा गया है। शहर के 7 इलाके हैं जो मरकजी रूट के साथ जोड़े गए हैं, उन इलाकों के हवाले से भी बताइए। देखिए, कनेक्टेड रूट फराम किए गए हैं ये BRT के लिए। एक कोहाट रोड से जो खैबर रोड से एरिया आता है इसको कनेक्ट किया गया है सदर के साथ। इसके अलावा जो सदर रोड का एरिया है जिना पार्क के करीब, यहाँ इसको कनेक्ट किया गया है। इसके अलावा जो खैबर कारखानों मार्केट है यहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया है। तो कनेक्टेड रूट फराम किए गए हैं ताकि जो मुलिका इलाके हैं वहाँ के शहरी भी जो हैं वो उनको BRT की सफरी सहूलत मुयसर हो सके। जी एहतशाम, टिकट्स के हवाले से भी बताइए। जैसा कि वज़ीर आज़म ने भी कहा कि टिकट हर कोई अफोर्ड कर सकता है, 15 से 50 रुपये तक टिकट रखा गया है। जी बिल्कुल, 10 रुपए से ये टिकट शुरू होता है, और जो फीस स्टेशन है 10 रुपए मुकर्रर किया गया है। लेकिन जो टिकट सिस्टम है वो 50 रुपए का मुहैया किया गया है। जो मेन रोड चमकनी से हैदराबाद का जो सफर है 27 किलोमीटर का, उसका 50 रुपए रखा गया है। और इसमें गवर्नमेंट का ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर इसमें सब्सिडी जारी है, लेकिन जो टिकट्स जो है मुकर्रर किया गया किराया वो आम लोगों के लिए है। तो वज़ीर आज़म ने भी यही जिक्र किया है कि इतना किराया वो रखा गया है कि आम लोग भी इसको बर्दाश्त कर सकेंगे। जी एहतशाम, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म की अभी क्या मसरूफियात हैं और आज सारा दिन पेशावर में कैसी गहमा गहमी रही? जी बिल्कुल, लोग जो है जब से ये कार्ड सिलसिला शुरू किया गया है लोग BRT कार्ड बनाने के में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने है वो खैबर जो इलाका है ज़िला खैबर वहाँ पर गए हैं। इसके अलावा BRT का इफ्तिताह किया है, और वो इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना जो है उनसे मुलाकात करेंगे वज़रा से, और जो तस्वीर दी जा रही है सूबाई काबीना में इस हवाले से भी बात होगी। और बताया जा रहा है कि गवर्नर हाउस में भी वो गवर्नर से मिलेंगे। जी एहतशाम बशीर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।